Let's give people another 5 minutes to join in. 35 पे exactly शुरू कर लेते. Righty, let's start off the session. I think 12:35 is time enough. Um, I hope you're all doing okay. Confirm कर दें please कि आपको मेरी आवाज आ रही है. And then we can start. Yes, sir. Fantastic. अच्छा जी, so आज thank you. Great. So आज का plan basically ये है कि if you remember last time हमने ASAD model को discuss किया था. तो आज हम जरा slides देखेंगे कि यार what do the slides have to say about the ASAD model. And once we are done with looking at the ASAD model, तो मैंने एक task upload कर दिया है LMS के ऊपर. You guys will be required to solve around 18 questions, MCQs mostly, but 2-3 ऐसे सवाल हैं जिनको पेपर पे सॉल्व करना होगा.
और पेपर पे सॉल्व करके फिर उनको जो है वो अपलोड करना होगा ऑन दी LMS. So the plan is to review chapter number 9, and then there is a task that needs to be completed by 3:30 today. So शुरू करते. Chapter number 9 was basically about the ASAD model. If you remember, we were discussing the model for demand and supply for the macroeconomy. Or हमने basically, when we started off, we talked about how there are lots of similarities between the demand and supply model that you saw in your microeconomics, the demand and supply wala. So there were some similarities, some differences. Similarities ये थी कि both were talking about demand and supply. Both had prices on the y-axis. Both had what is being produced on the x-axis. Except के difference ये था कि now the demand is going to be about everything that is being produced. उसकी demand कितनी है economy में और कितनी मुल्क के अंदर सारी चीजें बन के produce हो रही हैं, which is aggregate supply. So we had aggregate demand, aggregate supply. And since हम multiple चीजों की बात कर रहे थे तो एक चीज की quantity नहीं थी, we said कि it's going to be GDP. And since हम multiple चीजों की कीमतों की बात करें तो उनकी कीमतें जो है वो general price levels होगा. तो last time we talked about how this price is called the GDP deflator. ये deflator है. और फिर we said कि जी another difference between the micro model and the macro model is कि हम economics के अंदर short run और long run को समझने की कोशिश करते हैं कि how does the economy behave in the short run and how does it behave in the long run. And both of these behaviors are slightly different. And since they are different, तो हम basically अपनी modeling के अंदर एक जो supply curve है वो दो बनाते हैं, एक short run की होती है और एक long run की होती है. तो आज हम बेसिकली करेंगे ये कि ये सारा जो है ना इसको रिव्यू करेंगे. So let's start. The name of the chapter is Introduction to Economic Fluctuations. Chapter number 9 of the book. These slides, by the way, are not mine. They are the book slides that I'm using. So let's start off with this. Before we start, I'd like to run you through the summary of the chapter. The हर chapter के end में ना सारा summarize हुए होता है. Today I want you to see the summary first before we start the actual lecture. So the summary is as follows. First, the long run or short run can distinguish. By the end of this lesson that we have planned today, we should be able to actually comprehend that there is a difference between long run and short run in economics, in macroeconomics specifically. और हमने डिस्टिंग्विश किया है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बाय सेइंग कि लॉन्ग रन वो पीरियड होगा जिसमें प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, प्राइसेस फ्लेक्सिबल हो जाती हैं. एंड शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें कीमतें जो है वो स्टिकी हैं, मूव नहीं करती. लॉन्ग रन के अंदर प्राइसेस फ्लेक्सिबल है बट आउटपुट और बेरोजगारी जो है ना नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर और नेचुरल आउटपुट के ऊपर स्टिक करेगी. और इफ यू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट टाइम हमने बेसिकली कहा था कि दो तरह की इकोनॉमिक्स इस मॉडल के अंदर इन्वॉल्व है, एक क्लासिकल थ्योरी है और एक केंद्रियन साइड है. हमने कहा था लॉन्ग रन जो साइड है ना ऑफ द सप्लाई कर्व इसका इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच वाज अबाउट प्रोडक्शन and which was about having the land, labor, capital, technology to produce stuff. If you would have these resources, you'd be able to produce a maximum amount of this stuff. और इस maximum amount of stuff को कहते हैं natural output. और जब आप natural output पे run कर रहे होते हैं तो we are assuming कि you are utilizing all of your resources including labor. तो जब labor को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो you are running at full employment. और फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था हमने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि 0% अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इकोनॉमीज के अंदर हमेशा कोई ना कोई लोग जो है ना एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे जा रहे होते हैं, विच इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. एंड देन इकोनॉमीज के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के अंदर गैप हमेशा रहता है, बिकॉज ऑफ विच
full employment does not mean 0% unemployment. It means around 3-4% of unemployment rate is the natural rate of unemployment. शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस टिकी होती हैं, लेकिन जब कोई मसला आता है ना, जिस तरह स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है या तेल की कीमत चेंज हो जाती है या कोई फ्लड्स आ जाते हैं, तो आपकी इकोनॉमी जो है ना नेचुरल आउटपुट से पुश हो जाती है दूर, और बेरोजगारी बढ़ जाती है या कम हो जाती है whenever you are faced with some shock to the economy, and that is the long run behavior. So basically long run के अंदर what this slide is saying is, and what this chapter is going to teach us is कि prices flexible होती हैं, लेकिन output और unemployment जो है ना वो fixed होती है. In the short run prices sticky होती हैं, prices नहीं change हो रही होती हैं, लेकिन output और unemployment change हो सकती है. That's what we'll find out. Last time we talked about the model called the aggregate demand or aggregate supply का model, और हमने कहा था ये एक framework है, it's a graph sort of that helps economists try to figure out कि how will the economy react in the short run and the long run. और हम तीन चीजों को देखेंगे, GDP को देखेंगे, prices को देखेंगे, बेरोजगारी को देखेंगे, और we'll try to figure out कि ये fluctuations आती हैं तो how does the economy behave. इसके अलावा लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि एग्रीगेट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट हाउ द लॉन्ग रन एग्रीगेट, सो योर एग्रीगेट एडी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. वी टॉक्ड अबाउट हाउ द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल because output depends on the factors of production, not prices. So in the long run you are producing the natural rate of output. इसके अलावा शॉर्ट रन में हमने कहा था कि जी शॉर्ट रन प्राइसेस आर इन द शॉर्ट रन प्राइसेस आर स्टिकी, तो कीमतें चेंज नहीं हो रही होती, सिर्फ प्राइसेस ओवर हियर जीडीपी ओवर हियर इन ऑल ग्राफ्स, ऑल थ्री ऑफ देम प्राइसेस स्टिकी होती हैं. और द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व is horizontal because prices are sticky at a predetermined level. फिर उसके बाद if you remember last time we talked about what happens when central bank कहता है कि हम पॉलिसी मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, सेंट्रल बैंक कहता है कि मनी सप्लाई कम कर रहे हैं by changing reserve requirement, by changing the policy rate, by changing one of the tools, buying and selling of bonds कर लेता है. So in any of these cases, what happens is the economy shifts from the equilibrium. And उसकी बाद जब भी कुछ तरह का शॉक आता है, तो या तो एडी मूव कर सकती है या सप्लाई कर्व मूव कर सकती है, जिसकी वजह से जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएट करता है इन द शॉक. और सेंट्रल बैंक, अमेरिकन सेंट्रल बैंक को फेड कहते हैं, फेडरल रिजर्व, उसका काम ये होता है कि वो कोशिश करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके, जीडीपी को रिकवर कर सके, लोगों को नौकरियां दे सके, कोशिश करे कि कीमतें स्टेबल रहें. With that, this is the summary of the chapter. With this, let's actually start off with the slides. We have covered or discussed this whole chapter in the class last time. आज सुबह मैंने आपको एक क्लिप भी शेयर किया था कि which is a recording from 2022 of this class that I taught then, जिसके अंदर यही बातें हैं, वो रिकॉर्ड हुआ है. एंड आई आस्क यू कि अगर आप इसको 1.5x या 2x पे देख लेंगे ना, तो यू हैव अ गेज ऑफ व्हाट इज टू बी डिस्कस्ड इन टुडेस क्लास. तो जो चीजें उस वीडियो में थी अगर तो आपने देखी हैं, तो आपके पास यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे. If you have not seen this, hopefully we should be able to get through the chapter without any problems. If you have any questions, you have to ask me. And yeah, that's how it is. थोड़े से पहले facts about the economy है. आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन although नाजुक मोड़ से गुजर रही होती है, लेकिन in the long run over the last 70 years we have been growing at 2% per annum on average. But in the short run we are faced with, sometimes we are doing well, other times we are not doing so well, so we hit problems. So this we called the business cycles in the last class. We said that these are called business cycles. The fact that economy behaves in a cyclical manner
is where we say कि जी this is the economy experiences business cycles. I hope आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है। ये मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से कोई साउंड नहीं आ रही। यस सर, आ रही है। हुसैन बेसिकली सैन की क्लास शुरू हुई है कि नहीं हुई है, तो प्लीज उसको ग्रुप में मैसेज कर दे कि क्लास शुरू हुई है। राइट। तो जब भी so since this book slides are from the author who's an American, अगर आप ये देखें ना तो उसने स्टेटिस्टिक्स दिए हुए अमेरिका के। अमेरिका में जो उनकी इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी ग्रोज एट 3 to 3.5% पर एनम, हम 2% पे ग्रो करते हैं। और द सेकंड लाइन बेसिकली ओवर हियर सेज कि जी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फ्लक्चुएट करती हैं, जिसकी वजह से जीडीपी फ्लक्चुएट करता है। आपको याद होगा कि हमने कहा था जीडीपी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो व्हाट दिस बुलेट ओवर हियर इज सेइंग इज कि जब कंजम्पशन फ्लक्चुएट करती है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती है तो जीडीपी फ्लक्चुएट करता है। कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। आपके ख्याल में अगर कोई हालात बुरे हो जाते हैं तो आप कंजम्पशन करना छोड़ देंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सिर्फ कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, या आपने जीने के लिए कंजम्पशन तो करनी है? बिल्कुल। हाउ अबाउट इन्वेस्टमेंट? हालात खराब हो रहे हैं तो पैसे नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ सकते हैं ना कंप्लीटली, कि नहीं करते इन्वेस्ट, पैसे नहीं है तो यू रियलाइज के यस सर, इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। so you realize that investment is more volatile. अगर कोई यहाँ पे धमाका होता है ना, तो जितने पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए होते हैं ना इन इनटू पाकिस्तान, वो कहते हैं यार ये हालात ठीक नहीं है, छोड़ के लेट्स लीव द कंट्री। और मुल्क की जो ये इन्वेस्टमेंट आए है ना, इट लीव्स। वो कहते हैं वी वांट टू गो टू अ सेफर प्लेस। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो लोगों की कंजम्पशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, कम होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर, दिस ग्राफ ओवर हियर टेल्स यू द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। ये ब्लू लाइन है ना, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी किस तरह सिक्लिकल मैनर में ग्रो कर रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। इट इज एक्सपीरियंसिंग बिजनेस साइकिल्स। ब्लू लाइन जो है इज द हाउ द जीडीपी इज बिहेविंग। ये जो पिंक एरिया आ रहा है ना इन द ग्राफ इज आर पीरियड्स जहाँ पे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है। और हमने कहा था जब भी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम हो रही होती है ना, और 3 क्वार्टर से ज्यादा ग्रोथ रेट कम हो जाए, तो हम कहते हैं इकोनॉमी रिसेशन में जाना शुरू हो रही है। इट इज रिसीडिंग, ग्रोइंग वर्सेस रिसीडिंग। और जब 3 क्वार्टर्स which we discussed were how many months? 9 months। अगर जीडीपी गिरता रहे तो हम कहते हैं इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है। तो आप नोटिस करें कि ऑल दीज पीरियड्स पैचेस जहाँ पे ये पिंक है, इस पीरियड्स वेयर अ डिप इज हैपनिंग। अब जरा जो ये अगला ग्राफ है ना, is showing you कंजम्पशन किस तरह चेंज हो रही है। द रेड वन शोज यू कंजम्पशन चेंजेस। आप नोटिस करें कि कंजम्पशन चेंजेस और जीडीपी के चेंजेस कितने ऑलमोस्ट एग्जैक्टली फॉलो करते हैं एक दूसरे को। कंजम्पशन गिरती है तो जीडीपी गिरता है, या जीडीपी गिरता है तो कंजम्पशन गिरती है। दैट्स अ क्वेश्चन वी वांट टू थिंक अबाउट। बट अगले ग्राफ में देखें, ये वही वाला ग्राफ है पीछे वाला, बट थोड़ा जूम्ड आउट है। दिस इज द सेम ग्राफ दैट यू सी ओवर हियर, इसमें जीडीपी और कंजम्पशन आ रहा है। नोटिस के जो जो अगली लाइन डली है ना इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट का, जब जीडीपी गिरना शुरू होता है ना तो कंजम्पशन भी गिरती है, जीडीपी भी गिरता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नोटिस करें कितना ज्यादा कंपैरेटिवली गिरता है। पीपल पैक अप एंड स्टार्ट लीविंग। जब हालात इंप्रूव होना शुरू करते हैं, उसी उसी हिसाब से फिर लोग भी आना शुरू करते हैं, मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं।
Notice how big of a difference there is in the fall in consumption GDP versus investment. तो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बेसिकली सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होती है इन y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस d प्लस nx के अंदर. और ये जो लाइन ब्लू खा रही है ना आपको ये दिखा रही है कि ये पीरियड्स थे ना जहां जहां पे जीडीपी गिर रहा था उसमें बेरोजगारी को क्या हो रहा है आपको क्या लग रहा है व्हाट्स हैपनिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग पीरियड्स वेयर ग्रोथ इज डिक्रीजिंग. व्हाट डू यू थिंक. अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है सर. ग्राफ में देखें ग्राफ में क्या हो रहा है. लाल वो पीरियड है जहां पे जीडीपी गिर रहा है. जहां जहां पे भी जीडीपी गिर रहा है वहां पे बेरोजगारी बढ़ रही है. तो व्हेन जीडीपी फॉल्स अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. यहाँ पे देखें यहाँ पे भी बढ़ रहा है इधर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. जब ज्यादा इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है द वाइट पीरियड इज वेयर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल रही होती है बेरोजगारी कम हो रही होती है. फिर जब लाल पैच आता है तो फिर बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाती है. सो so what we're trying to say is that whenever GDP falls अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. और इसकी रीजन ये है कि जब आप जीडीपी फॉल करने का मतलब है चीजें कम बना रहे हैं. यू आर प्रोड्यूसिंग लेस एंड इफ यू आर प्रोड्यूसिंग लेस यू नीड लेस पीपल in your firm, so you start firing people. Does that make sense? हाँ जी. If you've gotten this idea कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है. जब जब प्रोडक्टिविटी गिरती है इन द रेड पैचेस उसमें बेरोजगारी बढ़ती है. दिस आइडिया that GDP and unemployment are inversely related. तो हो क्या रहा है GDP Y is inversely related with unemployment. This is what the graph is telling me. इस आइडिया को कहते हैं ह्यूकन्स लॉ. ह्यूकन्स लॉ कहता है कि जी जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है. कि आप अगर इकोनॉमीज जब ग्रो करेंगी व्हेन इकोनॉमीज ग्रो अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल. ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी. दैट्स व्हाट द ह्यूकन लॉ सेज. It says when you are producing more, you need more people and unemployment falls. Is what Ewcon's law is saying. अच्छा. इसके बाद the long run and the short run. If you remember from last time, we talked about how बड़ा मुश्किल है in economics deciding के long run क्या है और short run क्या है. Because इसमें subjective judgment आ जाती है कि जी मेरे ख्याल में तो long run 2 महीने. एक बंदा कहेगा मेरे ख्याल में long run 6 महीने. तीसरा बंदा कहेगा मेरे ख्याल में लॉन्ग रन 1 साल है. So it becomes difficult to distinguish between long run and short run. So in macroeconomics हम time horizons जो है long run और short run को distinguish करते हैं by saying कि जी जिस time period के अंदर prices flexible हो that's the long run. जिस time period में prices change ना हो रही हो sticky हो at a predetermined level this is called the short run. और what we notice is कि इकोनॉमी जो है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर डिफरेंटली बिहेव करती है. फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की स्लाइड है ये वो इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि जी को एडम स्मिथ साहब की जो इकोनॉमिक्स चल रही थी उसमें बेसिक आइडिया क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये था कि जो आउटपुट है वो एक फंक्शन है ऑफ योर लैंड लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. So output is determined by the supply side by suppliers of capital, labor and technology. अगर ये चीजें होंगी तो इसको इस्तेमाल करके आप आउटपुट बना सकते हैं. And output therefore is not affected by is not dependent on prices. इस फंक्शन के अंदर कीमत है नहीं है. तो अगर कीमतें नहीं है that's why आपको if you remember from last time
हमने कहा था कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल कर्व, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड आउटपुट इन द लॉन्ग रन। ये लॉन्ग रन की बात हो रही है। शॉर्ट रन में क्या कहा था हमने? शॉर्ट रन में हमने कहा था कि जी हम अज्यूम करते हैं कि प्राइसेस टिकी हैं, और जो आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो बेसिकली डिपेंड करेगी कि हुकूमत कितना खर्चा कर रही है, टैक्स कितना लगा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो रही है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कितनी है। दिस स्लाइड वील रेफर टू लेटर ऑन इन द लेक्चर। जब हम ग्राफ बना लेंगे ना, फिर वील डिस्कस के शॉर्ट रन की क्या बात हो रही है। Take a second to just look at this slide and read the first bullet point only, so that you understand कि why are we actually concerned about this ASCD model. ये डिमांड और सप्लाई मॉडल के ऊपर पीछे पड़े हुए क्यों हैं? तो basically this is the first sort of model that macroeconomists use when it comes to interpreting how the economy is behaving. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को समझने के लिए जो मॉडल इस्तेमाल किया जाता है इट्स कॉल्ड द एएसएडी मॉडल। अब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को किस तरह समझ रहे हैं? आप बेसिकली कह रहे हैं कि यार आई वांट टू फिगर आउट कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, शॉर्ट रन में हमारा मुल्क किस तरह में क्या होगा और लॉन्ग रन में हमारे मुल्क में क्या होगा। तो यू यूज द एएसएडी मॉडल टू थिंक अबाउट द फ्लक्चुएशंस कि जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल्स को क्या होगा। फिर देन यू कैन एक्चुअली वंस यू नो कि क्या होगा, देन यू कैन थिंक अबाउट हाउ what we can do to fix the problem. And this model shows you how price and output are determined in the short run and the long run. And it will show you कि economy जो है long run और short run पे मुख्तलिफ तरीके से behave करती है। फिर अगली जो स्लाइड्स है ना, चंद स्लाइड्स हैं, वो दैट गो अबाउट डिस्कसिंग व्हाई द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको याद होगा कि हमने ये वाली इक्वेशन क्लास के अंदर डिस्कस की थी, mv is equal to py, और हमने कहा था दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी। एंड all this is saying is के prices और GDP inversely related and that's why the aggregate demand is downward sloping. इसके अलावा लास्ट टाइम हमने वी टॉक्ड अबाउट व्हाट रियल मनी बैलेंसेस आर एज वेल। हमने कहा था जी, इफ यू रिमेंबर, इंडिया पाकिस्तान की बात की थी हमने कि एक मुल्क में एक बंदे के पास 1000 रुपए हैं, दूसरे मुल्क में 100 रुपए हैं। if both of them can only buy the same thing with the amount of money that they have, in real terms they have equal money, although nominal terms में एक के पास 1000 है, दूसरे के पास 100। So we said that the aggregate demand curve was downward sloping. आप लोगों को याद है कि what causes the AD curve to shift? What are the factors that will cause the AD curve to shift? हाँ जी, what will cause this to go Increasing from? demand, sir. नहीं, कब डिमांड बढ़ेगी, किस वजह से डिमांड बढ़ेगी? What will happen that will cause the demand to increase? लग्जरी गुड्स की वजह से। लास्ट टाइम हमने बेसिकली कहा यह था कि डिमांड तब बढ़ती है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है। If people have more money, they are willing and able to demand more things. If they are willing and able, तो aggregate demand बढ़ जाती है आगे। अगर उनके पास पैसे कम हो जाते हैं, लास्ट टाइम हमने स्टॉक मार्केट क्रैश की एग्जांपल की थी कि स्टॉक मार्केट में लोगों ने अपना पैसा डाला हुआ था, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, लोगों के पैसे लॉस्ट देयर मनी। When they lost money, their willingness and ability to buy stuff went down and aggregate demand fell. इसके अलावा हमने एक और रीजन भी बात की थी कि व्हाट इज द अदर रीजन व्हाई मनी सप्लाई कैन गो फॉरवर्ड और एग्रीगेट डिमांड कैन शिफ्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड। याद है? Besides money, we discussed another factor.
अच्छा, जब हम डिस्कस कर रहे थे ना एग्रीगेट डिमांड को, तो हमने कहा था ये एग्रीगेट डिमांड की जो इक्वेशन है ना, वो है MB इज इक्वल टू PY। और फिर उसके बाद बड़ी लंबी डिस्कशन हुई थी कि यार जब भी P और Y चेंज होता है तो यू मूव अलोंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व। इफ M changes और V changes, तो दिस डिमांड कर्व विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स। ये किसी को याद है कि V क्या चीज थी? व्हाट वाज V? रियल जीडीपी सर। V की बात हो रही है। रियल जीडीपी तो Y है ना। बी वेलोसिटी। वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या मतलब था? सर वो फ्लक्चुएट करती थी, मतलब किस तरह रन कर रही है ना। तो वेलोसिटी वाज हाउ मेनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स। यस तो सर। अगर किसी मुल्क में ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। और हमने कहा था कि अगर अमेजोन आ जाए या फिर अली बाबा आ जाए पाकिस्तान के अंदर, तो जिन लोगों को बाहर जाके शॉपिंग करने का शौक नहीं है, वो घर पे बैठ के दराज शराज से शॉपिंग कर लेंगे और ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगी। जब वी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ रही होगी चीज़ों की। और अगर वी कम हो जाए तो डिमांड गिर जाएगी। So to summarize, there are only two reasons that can cause aggregate demand to move forward or backward. और हमारे केस में it is M. M is how much money people have. लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो एग्रीगेट डिमांड आगे चली जाएगी। लोगों का पैसा डूब जाएगा फॉर सम ऑड रीजन तो एग्रीगेट डिमांड पीछे चली जाएगी। So if people have more money, they can demand more. If they have less money, they can demand less. So this slide basically explains when the AD shifts. ये shift कब करती है? जब भी when there is an increase in money supply, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, तो they are willing and able to demand more, and AD curve can shift and vice versa. Money supply, by the way, money supply कौन कंट्रोल कर रहा था? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक कंट्रोल कर रहा था लोगों के पास पैसा कितना है। तो अगर लोग पैसा ज्यादा बढ़ा देता है इकोनॉमी के अंदर स्टेट बैंक, तो डिमांड लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, वो डिमांड ज्यादा कर सकते हैं। अगर पैसा कम कर देता है, मनी सप्लाई कम कर देता है इकोनॉमी के अंदर, तो द रिलेशनशिप इज रिवर्स। लॉन्ग रन सप्लाई के बारे में हमने कहा था कि इट इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आपके पास चीजें बनाने की रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी है, तो आप एक मैक्सिमम अमाउंट बना सकते हैं बाय हैक, जिसको हमने कहा था नेचुरल आउटपुट है। So using all of your resources, there is a maximum GDP that you can produce, which is Y bar. And Y bar को अचीव करने के लिए यू आर रनिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट। सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का मतलब है कि जितने लोग विलिंग एंड एबल थे काम करने के लिए, उनको आप नौकरी दे दिए। जितना आपके पास मशीनें थी जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था, उनको आप इस्तेमाल कर रहे टू प्रोड्यूस स्टफ। So Y bar is full employment or natural level of output, the output at which economy's resources are fully employed. इकोनॉमी के सारे resources fully employed हो गए। When that is happening, you are achieving an output which is called the natural output. और natural output पे by the way बेरोजगारी की शरह नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रही होती है। वो नीचे लिखा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट means that unemployment equals its natural rate, not zero. मैंने कहा था ना कि हर मुल्क के अंदर कभी भी 0% अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। तो when we say full employment, we are saying you are running at your natural rate of unemployment, not saying that there is 0% unemployment in the economy. So long run, aggregate supply curve is a function of capital and labor and land technology. अगर लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो दिस कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज के इन द लॉन्ग रन output is not dependent on prices. That is why the relationship is vertical over here. Y hat, the natural output, does not depend on prices. That is why the long run aggregate supply curve is vertical.
अब ये ग्राफ है जिसके अंदर डिमांड कर्व डाल दी है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी है, और उसके बेस के ऊपर जिससे लेस लाइक योर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल जिसमें डिमांड और सप्लाई कर्व थी। तो एडी इज योर डिमांड कर्व, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज एक्चुअली योर सप्लाई कर्व। इसको आपने इस तरह करके देखा होगा, बट इट इज द सेम थिंग, just slightly rotated and vertical. हमने क्या कहा था, एग्रीगेट जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? हमने कहा जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, व्हाट हैपेंस टू पीपल्स एबिलिटी टू बाय थिंग्स? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और जब एग्रीगेट there will be an increase in money shifts the aggregate demand to the right. And notice के equilibrium point जो पहले यहाँ पे था ना, which was equilibrium with where demand becomes equal to supply. So this was where equilibrium was happening and prices were decided. तो जब aggregate demand move करके लाल लाइन पे आ जाएगी ना, तो यहाँ पे equilibrium decide हो रहा है पॉइंट बी के ऊपर, और बी के ऊपर equilibrium की प्राइस कितनी है? It is a higher price. तो in the long run आप लोगों से सवाल ये है कि पैसा छापने से क्या होगा? When you print money, what happens in the long run? तो आपने पैसा छापा, ये हो गया। What happens in the long run when money is printed? क्या जीडीपी बढ़ जाता है? पैसा छापने से जीडीपी बढ़ता है लॉन्ग रन में? आप डिक्रीज होता है। आप ग्राफ में देखें और ग्राफ में डिसाइड करें। जब आपने कुछ नहीं किया हुआ था तो आप यू आर एट दिस पॉइंट, पॉइंट ए पे जीडीपी कितना है? ए पे जीडीपी कितना है? सर वाई जो लिखा हुआ है, वाई डैश। वाई डैश। तो जब आप कुछ भी नहीं कर रहे थे तो ए पे थे, तो व्हेन यू वर एट इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई इक्वल थी, तो आपका आउटपुट वाई था। आप वाई हैड कुड बी एनी नंबर, लेट्स से 3000 ट्रिलियन डॉलर्स। फिर आपने कहा जी मैं पैसे छापता हूँ, पैसे छापे तो हुआ ये कि एग्रीगेट डिमांड ऊपर चली गई, इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। अब ए की जगह आप अब चले गए बी के ऊपर। अब बी पे वाई हैट कितना है? जीडीपी बढ़ा या कम हुआ? सर सेम है। तो पैसे छापने से जीडीपी तो सेम ही रहा, कीमतों को क्या हुआ? कीमतें बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई हैं सर लॉन्गर रन में। तो इन द लॉन्ग रन व्हाट यू बेसिकली सेइंग इज कि जब भी आप पैसा छापते हैं तो जीडीपी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट नहीं बढ़ती आपकी पैसा छापने से। ऑल दैट हैपेंस इज के चीजें महंगी हो जाती हैं, बिकॉज व्हेन यू इन द लॉन्ग रन आपके पास, आपको याद होगा जब मैंने महंगाई की बात की थी ना आपसे, तो आपसे कहा था कि यार एक डेफिनेशन ऑफ महंगाई ये है कि व्हेन too few goods are being chased by too much money, inflation happens. So Y bar 3000 trillion worth of GDP is when you're running at full potential, इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है आपकी, तो आप पैसा छाप देंगे तो कीमतें ही बढ़ेंगी, उससे आउटपुट नहीं बढ़ सकेगी, बिकॉज योर गुड्स आर गोइंग टू बी 3000, आप पैसा छाप के पैसा ज्यादा बढ़ा देंगे, गुड्स 3000 ही रहेंगे इन द लॉन्ग रन, एंड दिस विल क्रिएट इन्फ्लेशन. So what we are getting from this whole idea is that whenever you print money, in the long run, it only creates inflation. It does not increase GDP. But short run के अंदर जो है ना, थोड़ा सा कहानी मुख्तलिफ. अब ये देखें कि शॉर्ट रन के अंदर हमने कहा था कि शॉर्ट रन में अंदर कीमतें फिक्स्ड होती हैं, इस तरह होती हैं. अब ये वही एग्जांपल है, यू आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ए ओवर है, ये ए है, यहाँ पे आउटपुट कितनी है? जीडीपी कितना है? At equilibrium point A, what is the GDP? Sir, Y1.
अच्छा Y1 इफ यू प्रिंट मनी तो क्या होगा डिमांड को, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा यस सर। डिमांड का कर्व। पैसे जब ज्यादा आ जाएगा तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, डिमांड और सप्लाई कहाँ पे कट करी है, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। और पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, जीडीपी कितना है, सेम है या बढ़ गया है? या कम हो गया है? बढ़ गया सर। बिकॉज पहले वाई बार था ए के ऊपर, अब बी के ऊपर Y2 हो गया है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना इसी ग्राफ के अंदर एक लॉन्ग रन लाइन भी डालता हूँ। सॉरी, लेट्स अज्यूम कि ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करो। तो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन पे ए पे थे आप, आपने पैसा छापा, इन द शॉर्ट रन क्या हुआ, द शॉर्ट रन जीडीपी, आप बी पे आ गए, और बी पे क्या हो रहा है, जीडीपी बढ़ गया है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे है अभी, कैन यू आइडेंटिफाई वेयर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज? ये जो पॉइंट सी है ना, यहाँ पे लॉन्ग रन इज कटिंग द डिमांड को। This point C is where the long run supply curve is cutting the demand curve. तो जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। बी पे क्या हो रहा है, बी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है या लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम? शॉर्ट टर्म। क्योंकि डिमांड कट हो रही है विद द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। सी कौन से वाले हैं, सी पे क्या हो रहा है, डिमांड है और वो कट हो रही है विद द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो सी इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब बताएं कि हो क्या रहा है। शॉर्ट रन आपने पैसा छाप दिया, शॉर्ट रन में आपने मुझे कहा कि जीडीपी जो है ना वो बढ़ के Y1 से Y2 चला जाएगा। शॉर्ट रन में 1 महीने में, 2 महीने में यहाँ से बढ़ता बढ़ता बी पे चला जाएगा। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में आप बी से मूव करके सी की तरफ मूव करेंगे, और साल के बाद इकोनॉमी सी पे खड़ी होगी। और सी पे क्या हो रहा है, सी पे कीमतें बढ़ गई हैं, और जीडीपी कितना है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। प्राइसेस इंक्रीज हो गई है, जीडीपी कितना है, जीडीपी इज बैक एट इट्स ओरिजिनल लेवल Y1। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप पैसा छापते हैं तो इन द शॉर्ट रन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जीडीपी बढ़ता है, बट इन द लॉन्ग रन जीडीपी फिर वापस अपने लेवल पे आ जाता है, और बट बस कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस ग्राफ को हम छोड़ देते हैं, ये आप लोगों ने खुद देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट ग्राफ, आई वांट यू टू यूज योर ब्रेन। अच्छा, so this over here what you see on the slide is going to be depicting what we just did, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इफेक्ट्स क्या आते हैं जब पैसा छापा जाता है, जब मनी सप्लाई चेंज की जाती है, व्हेन द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स कि हम मनी सप्लाई चेंज कर रहे हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी पैसा छापा जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ जाएगी, इकोनॉमी विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और पॉइंट बी इज वेयर एग्रीगेट डिमांड इज कटिंग द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इस पॉइंट के ऊपर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होगा, और आप लोगों को ये आना चाहिए कि आप इस पॉइंट बी को ना, जहां पे मैंने ये सर्कल बना रहा हूँ, इस सर्कल को ग्राफ पे रीड करना आना चाहिए कि बी पे क्या हो रहा है। बी पे क्या हो रहा है वैसे, कीमतें कितनी है, पहले पहले कितनी थी, ए पे कितनी थी, ए पे कीमतें कितनी थी, ए में प्राइसेस पी हैट थी और जीडीपी वाई बार था। जब बी पे आए, यू मूव फ्रॉम हेयर एंड वेंट टू बी, बी पे कीमतें कितनी है, बढ़ी है या कम हो गई है, सेम। बी पे सेम है। पहले भी पी पी हैट था, ए पे भी पी हैट प्राइसेस थी और बी पे भी पी हैट है, बिकॉज हमने कहा था शॉर्ट रन में वैसे भी कीमतें स्टिकी होती हैं, प्राइसेस चेंज नहीं होती।
उसके बाद होगा ये कि एक महीना गुजर जाएगा, आप शॉर्ट रन में बी पे आ जाएंगे, बट इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सी। और सी पे क्या हो रहा है, कीमतें बढ़ जाएंगी। और जीडीपी कितना है सी पे? व्हाट इज द जीडीपी एट सी? So y dash. वाई डैश। इंक्रीज हो रही है y2। तो हम शुरू हुए थे वाई डैश से, शॉर्ट रन में जीडीपी बढ़ गया बी बी पे जब गए, बट लॉन्ग रन में वापस सी पे आ गया, और सी पे जीडीपी फिर वापस आ गया वाई बात पे, वाई डैश पे। तो व्हाट यू नोटिस इज कि जब आप पैसा छापते हैं तो शॉर्ट रन में जीडीपी बढ़ जाता है, बट इन द लॉन्ग रन जीडीपी फिर वापस आ जाता है अपने नेचुरल लेवल के ऊपर। अब सवाल ये है कि आपने तो ये कहा था कि जी जीडीपी जब नेचुरल लेवल का मतलब होता है कि जब अपने सारे रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो देयर इज अ मैक्सिमम दैट यू कैन प्रोड्यूस व्हिच इज कॉल्ड वाई बार। ये कहा था ना, नेचुरल आउटपुट इज द आउटपुट दैट यू अचीव व्हेन यू रनिंग एट फुल पोटेंशियल। तो ये y2 किस तरह अचीव हो रहा है? हाउ आर यू इंक्रीजिंग आउटपुट बियॉन्ड योर मैक्सिमम लेवल दैट यू कुड हैव प्रोड्यूस्ड? क्या ख्याल है, ये वो किस तरह है? So initially हमने पैसे प्रिंट किए हैं जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, उनकी आउटपुट भी बढ़ेगी, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो वापस प्राइसेस होंगी। बट सवाल ये है कि आपने तो कहा था बाय बार वो वाली आउटपुट है जो फुल पोटेंशियल पे आती है, मिलती है वो जब हम सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, सब रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी सारा एग्जॉस्ट हो गया। तो y2 पे किस तरह आ गया? से कैपिटल और इन्वेस्ट किया है ना हम लोगों ने। अच्छा, इस तरह नहीं है। द आइडिया इज कि यू कैन नॉट बी प्रोड्यूसिंग मोर देन y बार, बिकॉज अगर कैपिटल इन्वेस्ट होता ना तो होता ये कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, अगर कैपिटल ज्यादा आया था ना इकोनॉमी के अंदर तो ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब आगे चली। अभी हो रहा ये है कि आपने पैसा छाप दिया है, और जब आपने पैसा छापा है ना तो इकोनॉमी स्टार्टेड मूविंग बियॉन्ड इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, बिकॉज नाउ यू आर टेलिंग पीपल के यार तुम 8 घंटे तो काम कर रहे हो ना नॉर्मल वर्किंग आवर फुल पोटेंशियल पे, इस तरह करो, तुम ओवर टाइम काम कर लो हमारे साथ, 8-8 घंटे रोज के और लगा लिया करो। एंड बाय मेकिंग पीपल वर्क ओवर टाइम you have managed to increase your output beyond the maximum level possible अगर आप रेगुलर आवर्स पे काम कर रहे हो। बट इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि यार लोग जो हैं वो शायद एक महीना ओवर टाइम काम कर सकते हैं 16 घंटे, 2 महीने काम कर लेंगे, तीसरे महीने वो कहेंगे यार वी हैड इनफ, इतना इतना हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बर्न आउट हो रहा है, वी तो वो जो कहेंगे हम काम नहीं करना चाहते वो टाइम अब। तो दैट इज वाई जब आउटपुट बढ़ती है शॉर्ट रन के लिए तो परसिस्ट करती है, फिर लॉन्ग रन में वो वापस आ जाती है, बिकॉज लोग कहते हैं कि यार हम ओवर टाइम काम नहीं कर सकते। तो व्हाट हैपेंस इज इन द शॉर्ट रन यू कैन इंक्रीज जीडीपी by printing money, but in the long run it cannot be sustained, so GDP falls. But there are some consequences of printing money, and the consequences of printing money is कि in the long run कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई हो जाती है। So to summarize, what we are basically saying is कि इकोनॉमी के अंदर जब भी पैसा छापा जाता है तो शॉर्ट रन में तो जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है, बट इन द लॉन्ग रन जीडीपी नहीं बढ़ सकता। योर जीडीपी इन द लॉन्ग रन विल ऑलवेज बी इक्वल टू वाई बार, नो मैटर व्हाट यू डू। वाई बार को बढ़ाया जा सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि यार अगर हम जो मर्जी कर लें और हमेशा वाई बार पे ही आ रही है बात, तो ग्रोथ किस तरह होती है? हाउ डू वी इंक्रीज आवर जीडीपी? हाउ हैज पाकिस्तान इंक्रीज आवर जीडीपी फ्रॉम $300 billion to $370 billion these days? बेसिकली हो रहा ये होता है कि ग्रोथ तब आती है जब आपकी ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को आगे शिफ्ट करती है। अभी
फहद ने मेरे ख्याल से कहा था कि कैपिटल बढ़ेगा। तो अगर किसी वजह से चाइना अभी आया है हमारे पास, हमें कहता है कि यार हम आपको मशीन दे देंगे आपकी प्रोडक्शन के लिए, तो हमारी लैंड लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी में कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा, एंड लेबर तो हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो आर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैन शिफ्ट फॉरवर्ड, बट दैट इज अ लॉन्ग रन एनालिसिस। क्लास की स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि ये चैप्टर जो है ना, ये फ्लक्चुएशंस की एनालिसिस के लिए। एएसएडी मॉडल इज बेसिकली अ शॉर्ट रन का मॉडल, it is not a model that we use for analyzing long run things. Acha, if we've understood stuff till this point in time, अब इस तरह करते हैं कि we take a 5 minutes break. So अभी 5 minutes की नहीं, 8 minutes break और a 7 minutes break. 1:30 पे continue करते हैं, so that you can digest this for a second, and meanwhile once you have seen this and you've understood कि ये A से B किस तरह गया और B से C किस तरह गया, और you are able to read these points, करना खाली ये कि इसको रीड करना है। A के ऊपर प्राइसेस P है, GDP Y है, C के ऊपर प्राइसेस P2 है, GDP Y बार है, B के ऊपर प्राइसेस इतनी है, GDP इतना है। ये करना आना चाहिए आपको। So we continue with the next slides, and take a look at this slide, read what is written on A, B, and C, and we continue our lecture at 1:30.
राइट जी, सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, सो होपफुली आपने थोड़ा सा मे बी you have taken a look at this model and kind of tried to figure out कि यार इस model के अंदर you have prices, you have output, then it tells you how the economy behaves when it moves to point B, which is the short run, how the economy में कीमतें और output को क्या होता है when it moves to point C, which is the long run. So the model basically helps you figure out कि अगर स्टेट बैंक पैसा छापेगा तो शॉर्ट रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा। जो एक चीज इस मॉडल के अंदर और स्लाइड्स के अंदर नहीं दी गई हुई ना, वो ये बात है कि जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है या बढ़ती है। जब भी ज्यादा चीजें बनानी पड़ती हैं तो आपको लोग ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए। ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब है कि जब भी ज्यादा चीजें बनाएंगे तो बेरोजगारी कम होगी, लोगों को हायर किया जाएगा ज्यादा चीजें बनाने के लिए। तो इस मॉडल के अंदर ना नीचे जहाँ पे जीडीपी है ना, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये किताब जो है ना दिखाता नहीं है, वो ज्यूम करता है कि आपको पता नहीं चाहिए पर। तो at y bar you are actually running your natural rate of unemployment, which by the way is frictional unemployment, वो वाली unemployment जो which was because of people leaving an organization all the time and other people joining, and structural reasons की वजह से जो unemployment होती है 3%, 4%, let's say 4%। और जब आप कहते हैं ना आउटपुट बढ़ गई है, so what you're basically saying is that in order to increase output, you are employing more people to increase output. So when you're saying that, what you're basically saying is कि बेरोजगारी 4% से गिर के 3% पे आ गई। Conversely, अगर जीडीपी गिर जाए तो इसका मतलब है कम प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कम लोग चाहिए और बेरोजगारी की शरह जो है ना वो बढ़ जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इंक्रीज व्हेन आउटपुट गोज डाउन। When you're producing less, you need less people and unemployment increases. So that is something जो इस ग्राफ के अंदर नहीं था। अच्छा, how shocking. So before we discuss what shocks are, एक चीज जो जरूरी समझने वाली ये है कि ये जो मॉडल्स बनाते हैं ना हम, लेट्स सपोज ये डिमांड और सप्लाई का जो मार्केट वाला मॉडल था, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्यूडी एंड क्यूएस वाला, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड, which helped us figure out prices and which helped us figure out कि कितना प्रोड्यूस होगा, Q स्टार कितना होगा। जो ये मॉडल है ना, ये इसके अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल होता है जिसे कहते हैं एंडोजेनस वेरिएबल, और एक होता है उसे कहते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल। जो प्राइस है ना इस मॉडल में जो नजर आ रही है आपको, P नजर आ रहा है और क्या नजर आ रहा है, Q नजर आ रहा है। दीज टू वेरिएबल्स P एंड Q जो मॉडल के अंदर आपको दिख रहे हैं, और मॉडल के अंदर जो है ना ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होंगे कि कीमत कितनी होगी और क्वांटिटी कितनी होगी। Q चेंज करेंगे तो P चेंज हो जाएगा, P चेंज करेंगे तो Q चेंज हो जाएगा, बट दे आर विजिबल इन द मॉडल। दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एंडोजेनस वेरिएबल। ये वो वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम के अंदर डिसाइड होते हैं, मॉडल के अंदर डिसाइड हो रहे हैं। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल। एग्जैक्ट वाला जो है ना, एग्जैक्ट वाला ये एक्सोजेनस है। ये दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल। आउटसाइड का मॉडल का मतलब ये है कि जब ये मैंने डिमांड कर्व बनाई ना, तो मैंने अज्यूम किया कि लोगों की इनकम जो है ना मुल्क के अंदर वो 100 रुपए की है। मैंने अज्यूम किया कि लोगों की प्रेफरेंस जो है वो है इस चीज की खरीदने की। सो देयर इज प्रेफरेंस फॉर दिस थिंग, पीपल लाइक टू बाय इट। दीज थिंग्स आर नॉट directly visible over here, but you have assumed this stuff to make this model. तो ये वो चीजें जो बाहर से आप अज्यूम करके मॉडल के अंदर डालते हैं ना, उन्हें कहते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल। जो मॉडल के अंदर नजर आ रहे होते हैं और जिसे कीमतें और क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है इस मॉडल के अंदर, दीज आर ऑल एक्सोजेनस एंडोजेनस वेरिएबल।
तो अगर आप ये पिछला वाला मॉडल देखें ना, तो इसमें आपको पता लगेगा कि जो जीडीपी है वो एक एंडोजेनस वेरिएबल है. प्राइस लेवल्स आर आल्सो एन एंडोजेनस वेरिएबल, बट मे बी मनी सप्लाई कितनी होगी, या लैंड कितना होगा, लेबर कितना होगा. बिकॉज ये जो आपने लाइन बनाई है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की, ये अज्यूम बनाई है बाय अज्यूमिंग कि एक कुछ लैंड था, कुछ लेबर था, कुछ टेक्नोलॉजी थी, कुछ कैपिटल था. ये सारे एक्सोजेनस वेरिएबल. तो जब हम बात करेंगे ना इस अगली बात में शॉक की बात करेंगे, तो वी विल टॉक अबाउट एक्सोजेनस वेरिएबल्स के शॉक्स. ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको अज्यूम करके आपने ये जो डिमांड और सप्लाई का मॉडल बनाया था. अब जब शॉक आएगा तो इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी. So what are these? Let's take a look at these shocks. So shocks are exogenous changes in aggregate supply or demand. इसका मतलब है वो जो सारे वेरिएबल इस्तेमाल सोच के डिमांड और सप्लाई बनाई की थी ना, अगर उनमें से कोई वेरिएबल इनकम प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एन इंग्रेडिएंट, वो अगर चेंज होगा तो ये एक्सोजेनस फैक्टर चेंज हो रहा होगा. प्राइस और जीडीपी की नहीं बात हो रही. जब whenever an exogenous variable changes and it causes aggregate supply or aggregate demand to change, उसको हम कहते हैं ये शॉक आया है. इट इज अ शॉक. एंड शॉक की दूसरी डेफिनेशन ये है कि शॉक के नॉट शुड नॉट बी प्रिडिक्टेबल, शुड नॉट बी नोन. जैसे फॉर एग्जांपल जो है ना, आजकल हमें पता है कि यार इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी का रेट गिरेगा. जो 20% था, तो हमें पता है कि यार ये आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा और ये जो है ना जाके 15% पे आएगा या 10% पे आ जाएगा. लेकिन हमें ये स्टेट बैंक कभी नहीं बताता कि यार इस महीने हम कितना कम करेंगे, बिकॉज इट वॉन्ट्स टू कीप इट एज अ शॉक. बिकॉज अगर आपको पता हो ना कि आगे क्या होने वाला है, तो इकोनॉमी के अंदर अजीब सी जो होती है ना, उस प्री मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं लोग. आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि शॉर्टेजेस किस तरह होर्डिंग क्यों की जाती है. लोग आटा इस वजह से होल्ड करते हैं विद एन इंटेंशन कि जी आगे महंगा होगा तो बेचेंगे महंगा करके, राइट. या किसी को कोई खबर मिल जाती है स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या स्टॉक मार्केट अब के अंदर जो है ना ये वाला स्टॉक की कीमत बढ़ेगी, तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं स्टॉक को, ताकि जब कीमत बढ़े तो उनको एडवांटेज मिले. तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग शॉक्स, we are not just studying events, we are studying events that are not predictable, unpredictable events, shocks. कि आज स्टेट बैंक ने कहा हम मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि मनी सप्लाई बढ़ेगी. एंड नॉर्मली हम कहते ही हैं कि only if these things, these policy interventions are shocks, will they be effective in doing what they're trying to do. बट जब भी इस तरह कोई शॉक आता है ना, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चेंज हो सकती है, जिस तरह इस केस में आपने कहा जी एक शॉक आया कि मनी सप्लाई बढ़ा दी गई, मनी सप्लाई बढ़ाई तो एग्रीगेट डिमांड आगे चली गई. ये भी हो सकता था किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड. बट नोटिस के शॉक्स टेम्पररीली पुश द इकोनॉमी अवे फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट. आप बड़े आराम से पॉइंट ए पे बैठे हुए थे जहाँ पे जीडीपी बार. फिर स्टेट बैंक ने खुद ही एक शॉक क्रिएट किया जिसमें मनी सप्लाई बढ़ाया उसने, and which resulted in the economy moving away from Y bar, which was the equilibrium, to a new GDP Y2. तो अगर आप स्लाइड पे देखना, स्लाइड में ये कह रहा है कि shocks for a short period of time move the economy away from full employment. Full employment is full natural level of output. अब ये जो है ना, ये जरा स्लाइड को जरा देखें और मुझे बताएं कि ये नेगेटिव डिमांड शॉक क्या होगा. What would be an example of a negative demand shock?
हाँ जी, क्या ख्याल है? व्हाट वुड बी अ नेगेटिव डिमांड शॉक? क्या ख्याल है? पहले तो बात ये है ना कि डिमांड की बात हो रही है, तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। इज दैट अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग? सर नेगेटिव थिंग या पॉजिटिव पता नहीं सर। जीडीपी बढ़ना तो पॉजिटिव बात है ना, जीडीपी जी बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो नेगेटिव डिमांड शॉक कुड बी एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैशिंग। स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो होता ये है कि लोगों के पास जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? Money supply would probably go down. And when money supply goes down, aggregate demand curve moves backwards. अब notice कि before we go to this, मुझे जरा आप what I want everyone to do is look at point A and establish कि A में क्या हो रहा है। A पे कीमतें कितनी है? P bar at point A, इसको रीड कर रहा हूँ just like a graph, और आउटपुट कितनी है? Y bar। जब अब डिमांड शॉक आता है, नेगेटिव डिमांड शॉक, जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है, मनी सप्लाई लोगों के पास, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, तो देयर विलिंगनेस तो शायद हो, एबिलिटी टू बाय स्टफ गोज डाउन, एंड व्हेन देयर एबिलिटी टू बाय स्टफ गोज डाउन, एग्रीगेट डिमांड मूव्स बैकवर्ड्स। अब मुझे ये पता है कि बी पे क्या हो रहा है। व्हाट हैपेंस एट बी? व्हाट इज हैपनिंग एट बी एक्चुअली? इज बी द शॉर्ट रन और द लॉन्ग रन? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट शॉर्ट रन। अच्छा ठीक है, फाइन, परफेक्ट। अब मुझे ये बताएं कि बी के ऊपर जीडीपी कितना है? Y2 वाइट Y2 गिर गया ना पहले से। जी। इफ यू वर टू इंटरप्रेट दिस, यूड से कि शॉर्ट रन में हुआ ये कि जीडीपी गिर जाएगा जब इस तरह का स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। प्राइसेस को क्या होगा? पहले कितनी थी, अब कितनी है? प्राइसेस उतनी रहेंगी क्योंकि शॉर्ट रन में प्राइसेस टिकी होती हैं। हाँ, सो पहले ए के ऊपर पी बार थी, बी को अगर मैं रीड करता हूँ तो बी में भी कीमतें पी बार ही हैं, तो प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट, कीमतें नहीं चेंज होती। हाउ अबाउट बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट में को क्या होगा जब जीडीपी गिरेगा? तो ज्यादा हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब सो दिस द होल पॉइंट ऑफ दिस मॉडल इज कि अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि यार स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, तुमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मुझे बताओ कि शॉर्ट रन में इकोनॉमी किस तरह बिहेव करेगी, तो ये जो ग्राफ के अंदर शिफ्ट दिखाया ना, एग्रीगेट डिमांड गिरना और प्राइसेस सेम रहना, जीडीपी गिर जाना, बेरोजगारी गिर जाना, नॉर्मली पीपल डू इट इन देयर हेड, बट दे डोंट मेक इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दे डू इट ऑन देयर हेड। एंड दे से कि यार शॉर्ट रन में जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगी ना, तो कीमतों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शॉर्ट रन में प्राइसेस टिकी होती हैं, लेकिन जीडीपी गिरेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। बट लॉन्ग रन में क्या होगा? हाँ जी, लॉन्ग रन पे क्या होगा? लॉन्ग रन इज पॉइंट सी ओवर है, जहाँ पे डिमांड इज बीइंग कट बाय द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। सर लॉन्ग अब रन में सी को, प्राइसेस गिर जाएंगी और जो जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अपने नेचुरल उस पे आ जाएगा रेट पे। तो लॉन्ग रन में प्राइसेस पहले जो पी बार पे थी बी के ऊपर, वो कम होके पी टू पे आ जाएंगी, तो प्राइसेस विल फॉल। जीडीपी जो गिरा हुआ था, अब सी को रीड करें तो जीडीपी जो है वो वाई हैट है, बैक एट इट्स नेचुरल रेट, अनएम्प्लॉयमेंट इज बैक एट इट्स नेचुरल रेट। तो अगर अब नाउ if somebody were to ask you कि यार using the ASAT model, explain to me how the economy will behave in the short run and the long run when there is a stock market crash,
तो इस मॉडल को इस्तेमाल करके आप उसे ये कह सकते हैं कि मेरे मेरे मॉडल अकॉर्डिंग टू द ASAD मॉडल व्हाट विल हैपन इज दैट इन द शॉर्ट रन GDP इज गोइंग टू फॉल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू राइज, कीमतों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग रन पे जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई होगी ना, तो होगा ये कि कीमतें गिरेंगी, P1 से गिर के P2 पे आ जाएंगी, बस कीमतें गिरेंगी और आउटपुट और बेरोजगारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड वांट के स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए? नो सर। बट सोचने वाली बात तो ये है ना कि ए पे क्या हो रहा था, ए पे कीमतें P हैट थी, आउटपुट Y बार थी, बेरोजगारी नेचुरल रेट में थी। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है तो लॉन्ग रन में कीमतें कम हो जाएंगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी और आउटपुट Y बार और नेचुरल रेट पे रहेगी। ये तो विन विन सिनेरियो लग रहा है। क्या ख्याल है? विन विन ही लग रहा है ना कि यार कीमतें कम हो जाए, आउटपुट उतनी ही रहे। इफ यू कंपेयर पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, कीमतें ज्यादा थी, आउटपुट Y बार थी, नेचुरल रेट पर अनएम्प्लॉयमेंट थी। यहाँ पे कीमतें कम है, आउटपुट नेचुरल रेट है और सर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है? इंक्रीज हो जाएगी। बेटे ग्राफ को पढ़ो ना, यू नीड टू रीड द ग्राफ टू डिसाइड कि कीमतें बढ़ रही हैं सी में या कम हो रही हैं। ए पे कितने कीमतें? ए पे नेचुरल है। ए पे कीमतें कितनी हैं, प्राइसेस कितनी हैं? ग्राफ को रीड करें, ये इस साइड पे जाएंगी, ए से साइड पे जाएंगे तो ये कीमतें हैं, दीज आर प्राइसेस, दीज आर प्राइसेस और ये आउटपुट है। पॉइंट ए को ग्राफ को रीड करना है, इसमें एक्स की वैल्यू Y बार है और Y की वैल्यू कितनी है, P बार। X is this much, Y is this much on the X axis, Y axis। C के ऊपर X जो है, जो आपका नीचे वाला है, वो Y बार है और Y एक्सिस पे कितनी वैल्यू है, P2। अब P1 P हैट ज्यादा है या P2 ज्यादा है? P बार ज्यादा है। तो जब आपका when you move from A to C, तो कीमतें बढ़ रही हैं या कीमतें कम हो रही हैं? सर A to B A to C कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब नेगेटिव डिमांड शॉक आएगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, आउटपुट उतनी ही है, पहले भी Y बार थी, अभी Y बार है, बट कीमतें चेंज हो गई हैं और बेरोजगारी भी उतनी ही है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जितनी है। अब कैच ये है कि ऑल्दो दिस लुक्स लाइक अ ग्रेट आइडिया कि यार स्टॉक मार्केट क्रैश हो और हम पहले बी पे जाएं, फिर बी से सी की तरफ आ जाएं, जहाँ पे आउटपुट भी रिटर्न हो जाए, लोगों की जो नौकरियां गई थी जब गिरी थी वो भी वापस मिल जाए उन्हें। The problem is that we are not as policy makers sure कि how long it is going to take the economy to move from B to C। A से पहले इकोनॉमी B पे जाती है, फिर B से C की तरफ जाना होता है। लेकिन मसला ये है कि B से C तक कितना टाइम लगेगा, that we are not sure of। और the point of having this whole exercise is कि आपको ये समझने की जरूरत है कि ये खाली नंबर नहीं है कि GDP बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। जब आप कहते हैं ना GDP गिर गया, तो आप कह रहे हैं कि लोगों की नौकरियां चली गई। When GDP fell, when you move from A to B, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। इन द लॉन्ग रन GDP रिकवर करेगा और लोगों को नौकरियां फिर मिल जाएंगी, बट दिस लॉन्ग रन कुड बी 10 years। तो आप as the government or the State Bank of Pakistan, you cannot wait for 10 years for a better outcome जिसमें कीमतें सस्ती कम हो गई हो और आउटपुट रिटर्न हो, आउटपुट बाय बार। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसको जरा ना मैं आपको एक खुद बना के दिखाता हूँ, so that you understand this।
कोशिश करता हूँ यार, सही। So you have AD, you have the short run aggregate supply curve, you have the long run aggregate supply curve, you have price levels of everything in the economy and GDP over here, and this line over here is natural output. तो नेचुरल आउटपुट का नंबर दे देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। ये 300 बिलियन जीडीपी है, यहाँ पे बेरोजगारी की शरह 4% चल रही है, सही है। और इकोनॉमी खड़ी हुई है एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए के ऊपर जो प्राइस लेवल है डिफ्लेटर की वैल्यू है 100। महंगाई की शरह जो है ना वो ये नहीं पता क्या है, बट प्राइस लेवल 100 पे चल रहे हैं। फिर होता ये है कि आपने भी कहा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। स्टॉक मार्केट जब क्रैश होती है तो लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कम हो जाती है, और ये जो काली वाली एग्रीगेट डिमांड कर्व है ना वो शिफ्ट होकर पीछे चली जाती है एंड बिकम्स दिस। और नोटिस के जब पीछे वाली काली वाली एग्रीगेट डिमांड है ना वो गायब, वो मूव हुई है, उधर से मूव होके पीछे चली गई है, एंड यू आर फेसिंग दिस सिनेरियो। हुआ ये है कि आप जहाँ पे ए के ऊपर कीमतें 100 थी और आउटपुट 300 थी और बेरोजगारी 4% थी, जब एग्रीगेट डिमांड पीछे चलेगी तो आपकी इकोनॉमी ए से मूव करके पहले शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी, विच इज दिस पॉइंट एस। अब एस को आपने ग्राफ रीड करना है। एस के ऊपर जो है ना शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, कीमतें पहले 100 थी, अब कितनी है एस में? क्या ख्याल है, कीमतें कितनी है एट पॉइंट एस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? कीमतें पहले भी 100 थी, अब भी 100 ही है, तो प्राइसेस डोंट चेंज। जीडीपी को क्या हुआ है? जीडीपी गिर के Y2 पे आ गया है, Y2 इज 150। तो जीडीपी गिरा है 300 से गिर के 150 पे आ गया। हाउ अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट पहले 4% चल रही थी ए के ऊपर, अब सिंस प्रोडक्टिविटी गिर गई है, प्रोड्यूस ही कम कर रहे हैं, आपको लोगों की जरूरत नहीं है, तो बेरोजगारी की शरह बढ़ के 4% से 6% पे आ गई। तो 2% एक्स्ट्रा लोगों की नौकरियां चली गई। ये तो शॉर्ट रन था ना, हो सकता है ये वो कढ़ाई की दुकान हो जिसके अंदर शॉर्ट रन जिसमें कीमतें फिक्स्ड होती हैं वो 1 महीना हो, 1 महीने के लिए तो लोगों के पास नौकरियां नहीं। उसके बाद इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड कट करती है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को, विच इज दिस पॉइंट एल। तो इकोनॉमी एस से मूव करना शुरू करेगी एल की तरफ, और एल पे क्या हो रहा होगा, एल पे कीमतें जो है वो इन द लॉन्ग रन प्राइसेस जो 100 पे थी पहले गिर के 50 पे आ जाएंगी। तो 100 से गिर के 50 पे आ जाएंगी। आई एम जस्ट रीडिंग दिस पॉइंट। और आउटपुट कितनी हो जाएगी, 150 थी एस पे, वहां से बढ़ के 300 पे वापस आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ के 6% पे हुई भी थी वो कम होके वापस 4% पे वापस आ जाएगी। ए पे क्या हो रहा था, ए के ऊपर भी जो थी ना आउटपुट थी वो 300 थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो 4% थी, और महंगाई का लेवल 100 था। तो अगर आप ए को और लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम को कंपेयर करें ना तो अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी सेम हो गया। दिस गाय एंड दिस गाय आर द सेम, बट कीमतें कम होंगी। However, how long you move from the short run equilibrium to the long run equilibrium could be a very long time or could be a very small time. So normally होता ये कि जब इस तरह का सिनेरियो आए ना और ये पीछे चला जाए और आपको पता नहीं हो कि कितना टाइम में मूव करना है एस से एल में, जिसके अंदर जो 2% लोग एडिशनल बेरोजगार हुए थे उनको नौकरियां दिलवानी है, हुकूमत का काम ये है,
So what the State Bank of Pakistan does, and this is critical for us to understand, this is very, very important. What the State Bank starts doing is, वो कोशिश करता है कि ये जो डिमांड कर्व है ना, इसको किसी तरीके से आगे मूव करे. कोई तरीका है आगे मूव करने का एग्रीगेट डिमांड को? हाँ जी. Is there any way through which demand can be moved forward? अच्छा, अब इस तरह करेंगे हम कि 155 हो गए. 2:30 पे when we done with the slides, we'll have a small quiz on this. Just to see how many people were attentive. अच्छा. So what the State Bank can actually do is it can start increasing the money supply. स्टेट बैंक पैसा छापना शुरू कर देता है, मनी सप्लाई बढ़ाना शुरू कर देता है. जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना एग्रीगेट डिमांड मूव करके आगे आ जाती है. So by increasing money supply and moving the aggregate demand forward, what the state bank does is it stabilizes the economy. जिसकी नौकरी गई होती है ना यहाँ पे एस पॉइंट पे, तो वो एस से एल की तरफ मूव करने नहीं देता है, एस से वापस मूव करा देता है ए की तरफ by shifting the aggregate demand forward. And the fact कि स्टेट बैंक ने अब इंटरवीन करके मनी सप्लाई बढ़ाई है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्टेट बैंक स्टेबलाइजिंग पॉलिसी. इट्स कॉल्ड स्टेबलाइजेशन पॉलिसी. स्टेबलाइजेशन. अच्छा जी. With that being said, let's talk about the supply side shocks. अभी तो ये डिमांड का शॉक था ना. Let's talk about supply side shocks. सर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या होती है? तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ये होती है कि आपकी इकोनॉमी अब चलेगी ना ए से बी के ऊपर, तो आउटपुट गिरेगी और लोगों के पास नौकरियां चलेगी. अब स्टेट बैंक इंतजार नहीं करता कि यार बी से सी पे आ जाए, आउटपुट रिकवर हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रिकवर हो जाए, बिकॉज पीपल आर अनएम्प्लॉयड एंड दे डोंट हैव जॉब्स एट दिस पॉइंट. तो व्हाट द स्टेट बैंक स्टार्ट्स डूइंग इज कि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, लोगों को नौकरियां वापस देने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाना शुरू कर देते. ठीक है. तो जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो लोगों के पास जब पैसा आता है तो एग्रीगेट डिमांड आगे मूव करना शुरू हो जाती है और वो वापस ब्लू लाइन की तरफ आ जाती है. ब्लू लाइन के पास आ जाती है तो जिन लोगों की नौकरियां जा रही होती थी हो रही हैं, वो वापस आना शुरू हो जाती हैं. तो बाय कंट्रोलिंग द मनी इट कंट्रोल द डिमांड. अगर डिमांड गिर रही होती है तो ज्यादा छाप के आगे मूव कर देता है. स्टॉक मार्केट की वजह से गिरी थी ना, तो वो पुश करके वापस कर देता है, यार पैसा छाप के आगे, लेट्स मूव इट बैक. इफ फॉर सम ऑड रीजन एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो जाए तो स्टेट बैंक कैन देन रिड्यूस द मनी सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कीमतें बढ़ जाएंगी, तो वो इट कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई एंड ब्रिंग इट बैक टू द ब्लू लाइन अगेन. दिस इज द स्टेट बैंक स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी. अच्छा, अब जरा सप्लाई साइड को देख लेते हैं. सप्लाई शॉक्स वो शॉक्स होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज हो रही है. और आपको याद होगा जब हम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की बात कर रहे थे, एग्जांपल देख लें कि अगर बैड वेदर हिट्स, फ्लड आ जाता है, यूनियंस आके कहती हैं वेजेस बढ़ाई जाएं, कोई नई रेगुलेशन आती है जिसकी वजह से फर्म्स को रिक्वायर्ड है कि वो हर गाड़ी जो बना रही है उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर या सीट बेल्ट डाले, तो ऑटोमेटिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कार गोज अप. एंड इफ इट गोज अप, दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन कॉस्ट का शॉक. इट्स कॉल्ड अ प्राइस शॉक. तेल की कीमत जो बढ़ती है इज अ प्राइस शॉक. एंड this the 1970s oil shock is an example of a price shock. ये आई थिंक आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी कि 1970 में जो ये ओपेक के ममालिक थे ना,
जो ऑयल बना के एक्सपोर्ट करते थे, इन्होंने मिल के डिसाइड किया कि हम जो है ना दुनिया की तेल की सप्लाई कम करेंगे, और उनका तेल की कीमत बढ़ाने की वजह से जो है ना 11%, 68%, 16% ओवर दीज ईयर्स, तो सप्लाई कम हुई तो तेल की कीमत बढ़ी। जब तेल की कीमत बढ़ी तो जो लोग खरीद रहे थे ना तेल, उनको फिर तेल महंगा मिलना शुरू हो गया। जैसे हम तेल खरीदते हैं, हमने जब तेल खरीदा तो हमें तेल महंगा मिला, जब तेल महंगा मिला तो हमने जो बिजली बनाई वो महंगी बनी, जो कारखानों में बिजली इस्तेमाल हुई वो महंगी बिजली थी, तो कॉस्ट ऑफ दैट बिजली गॉट ट्रांसफर्ड फॉरवर्ड इनटू टू द एंड यूजर। हुआ ये कि इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ना शुरू हुआ। ये कि जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ऑयल शॉक आया, इट शिफ्टेड द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर। जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी गोज अप, दिस शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व गोज अप। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व गोज डाउन। जब भी ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर जाती है ना, तो दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव सप्लाई शॉक। It is a bad thing that everything in the economy is becoming more expensive. The fact कि ये blue से red पे चलेगी is a negative supply shock. Everything in the economy has become more expensive. अब when this happens, economy move करती है A to B. A पे क्या हो रहा था और B पे क्या हो रहा था? Take a second to look at the graph. First figure out कि A पे क्या है? What is happening at A? A के ऊपर कीमतें कितनी है? आउटपुट कितनी है? और जज के अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो? तो when I'm looking at point A, I'm reading A. A के ऊपर कीमतें हैं P1, आउटपुट कितनी है? Y बार, और अनएम्प्लॉयमेंट लेट्स से नेचुरल रेट। जब ये सप्लाई शॉक आया, इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, एवरीथिंग इन द इकोनॉमी बिकेम मोर एक्सपेंसिव, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वेंट अप बिकॉज तेल महंगा हो गया था। तो इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और B पे क्या हो रहा है? नाउ वी नीड टू रीड पॉइंट B। B पे क्या हो रहा है? लेट्स लुक एट B। B पे कीमतें कितनी है? से बढ़ गई। P2 पे होगी, इसका मतलब बढ़ गई। आउटपुट को क्या हुआ? जीडीपी क्या हुआ? कम हुई या ज्यादा हुई? आप रीड कर रहे हैं इसको। सर डिक्रीज होगी, Y2 पे आ गई, इसका मतलब आउटपुट गिर गई। और जब भी आउटपुट गिरती है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो बढ़ती है, इंक्रीज। अच्छा, आप टेक अ सेकंड टू एक्चुअली ट्राई टू फिगर आउट कि हुआ क्या। हुआ ये कि तेल महंगा हुआ, जिसकी वजह से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का ऊपर चलेगी, नेगेटिव सप्लाई शॉक था। उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जीडीपी गिर गया, और जीडीपी गिरा तो खलील की नौकरी चली गई। और नौकरी तो गई गई, साथ के साथ साथ कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई। तो दिस इज अ सिनेरियो वेयर I lose my job and things start to become expensive as well. अगर आप देखें ना, पीछे जो नेगेटिव डिमांड शॉक आया था, उसके अंदर मेरी नौकरी तो गई थी। नेगेटिव डिमांड शॉक जब आया था ना, तो ए से बी मूव हुए थे, तो मेरी नौकरी गई थी, लेकिन कीमतें एटलीस्ट पी बार पे थी। ए पे भी पी बार है, बी पे भी पी बार है, तो महंगाई नहीं हो रही थी, मेरी नौकरी चली गई थी। जब नेगेटिव सप्लाई शॉक आता है ना, तो नौकरी भी जाती है और साथ साथ कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। This, when there is a negative supply shock, this concept, what happens, this is called stagflation. Stagflation का मतलब है कि जीडीपी स्टैग्नेट कर रहा है, जीडीपी इज फॉलिंग। स्टैग्नेट का मतलब होता है स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी, और साथ साथ इन्फ्लेशन भी हो रही है। तो मेरी नौकरी भी जा रही है बिकॉज जीडीपी स्टैग्नेट कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ स्टैग्नेट कर रही है, और साथ के साथ इन्फ्लेशन भी हो रही है। सो दैट इज वाई नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब नेगेटिव सप्लाई शॉक आता है ना, दैट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ शॉक दैट कैन हैपन टू एन इकोनॉमी। और आजकल तो आता ही सप्लाई शॉक है।
तेल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी होने शुरू हो जाती हैं, तो नौकरियां भी जाती हैं और चीजें भी महंगी हो रही होती हैं साथ। तो ये 1970 का जो ऑयल शॉक है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव सप्लाई शॉक बिकॉज ऑयल बिकेम एक्सपेंसिव, the cost of everything became expensive. That is why it's called a negative supply shock, not a positive one. और इवेंचुअली होगा ये कि पहले आप ए से बी की तरफ जाएंगे इन द शॉर्ट रन। तो बी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है या शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, क्या ख्याल है आपका? शॉर्ट रन है। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे है यहाँ पे? से ए पे। So A is where the demand is being cut by the long run supply curve. A is the long run equilibrium. तो पहले इकोनॉमी जाएगी A से B की तरफ शॉर्ट रन में 1 महीना 2 महीना, and in the long run when prices become flexible वो गिर के वापस आ जाएगी अपने ओरिजिनल लेवल के ऊपर। बट आपको मैंने भी ये कहा था कि जब जीडीपी गिरता है ना, लोगों की नौकरियां जाती हैं, तो फिर सेंट्रल बैंक बैठ के इंतजार नहीं करता कि बी से ए की तरफ वापस लॉन्ग रन की तरफ मूव कर जाए, बिकॉज लोगों की नौकरियां चली गई होती हैं। और ये तो और भी ज्यादा खतरनाक मसला है कि नौकरियां भी गई हैं, साथ साथ महंगाई भी हो रही है। तो व्हाट शुड द सेंट्रल बैंक डू देन, क्या ख्याल है आपका? हाउ शुड इट स्टेबलाइज द इकोनॉमी? एग्रीगेट डिमांड को मूव करेगा स्टेट बैंक। स्टेट बैंक करेगा ये कि एग्रीगेट पैसा छापना शुरू करेगा, मनी सप्लाई बढ़ना शुरू होगी, लोगों के पास जब पैसा आना शुरू होगा तो एडी कर्व किधर जाएगी? राइट पे, आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी, फॉरवर्ड हो जाए, फॉरवर्ड मूव हो जाएगी। एंड ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की स्लाइड है। तो ये नेगेटिव सप्लाई शॉक आया, द गवर्नमेंट विल नॉट वेट, द सेंट्रल बैंक विल नॉट वेट, it will start printing money so that AD starts moving forward and you will move from point B to C, not come back to point A। और C के ऊपर जो है ना आके इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी और लोगों की जो नौकरियां गई थी वो वापस मिल जाएंगी। बट इसका एक नुकसान जरूर है, अगर आप इंतजार कर लेते ना तो कीमतें वापस कम होके P1 पे आ जाती। बट सिंस आपने इंतजार नहीं किया और पैसे छापे ताकि एग्रीगेट डिमांड को आगे मूव करके लोगों को नौकरियां वापस दी जाए, तो एट पॉइंट सी कीमतें आर हायर देन पॉइंट ए, तो कीमतें परमानेंटली हाई हो जाएंगी। सर इंतजार करने से कैसे होगी स्टेबलाइज? सॉरी सर इंतजार करने से स्टेबलाइज कैसे होगी? इंतजार करने का मतलब ये है ना कि आप बी पे हैं तो आप इंतजार कर लें कि 2 साल के बाद बी से जो ना मूव कर देगी ए पे, बिकॉज ए इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। इवेंचुअली इकोनॉमी ने शॉर्ट रन से लॉन्ग रन पे जाना होता है, तो जब प्राइसेस फ्लेक्सिबल होना शुरू होंगी तो यू विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बी टू ए, और ए के ऊपर कीमतें कम है। लेकिन हाउ लॉन्ग इट टेक्स यू टू मूव फ्रॉम ए टू बी, the central bank is not sure about. So it has to take action, and it takes action by increasing the aggregate demand। और ट्रेड ऑफ ये होता है कि अगर महंगाई होती है तो होती रहे, एटलीस्ट लोगों के पास अब नौकरी तो आ गई है ना, अब नौकरी करेंगे तो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेंगे। So that is the end of chapter number 9 of the book on introduction to economic fluctuations। अब मैं आपको जो ना 2 और ग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर we'll have you go through that quiz sort of thing that I have for you in on the LMS। So I'll just quickly run you through these things ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। So for any kind of interpretation on ASAD that you have to make, the first thing that you need to do is make the ASAD का graph, जिसके अंदर y-axis पे GDP deflator prices of everything है। You have a short run aggregate supply curve, this will move if the cost of production changes। You have a long run aggregate supply curve, this will move if the factors of production, land, labor, capital, technology changes। And then you have a aggregate demand curve, this will move if money supply changes,
So this will move if money supply changes or velocity changes. This will move if cost of production changes for some reason. This will move if there is a change in land, labor, capital, or technology. And this is price level P hat. This is output Y hat, and Y hat the natural rate of unemployment है, and there is you are running an equilibrium at A. अच्छा, हमने अभी डिमांड नेगेटिव डिमांड शॉक की तो बात की है, पॉजिटिव डिमांड शॉक की बात नहीं की। तो पॉजिटिव डिमांड शॉक किस तरह का होगा आपके ख्याल में? पॉजिटिव डिमांड शॉक होगा कि पेपैल कहता है कि यार हम आ रहे हैं पाकिस्तान में, नाउ पीपल हु आर सिटिंग इन पाकिस्तान कैन बाय थिंग्स फ्रॉम अमेरिका एंड वी विल गारंटी कि अगर कोई खराब चीज आ जाएगी तो हम वापस करवा देंगे। पेपैल कहने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। तो क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, क्या ख्याल है? इक्विलिब्रियम आ जाएगा सर। इक्विलिब्रियम तो है ना, है पॉइंट ए पे इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है। जब आप Yes. पेपैल आएगा ना तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन द इकोनॉमी इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड विल मूव फॉरवर्ड। दिस इज अ पॉजिटिव डिमांड शॉक। डिमांड बढ़ी है तो पॉजिटिव चीज है। So this is an example of a positive demand shock. Demand shock. अब जब एग्रीगेट डिमांड कब आगे जाएगी तो you have equilibriums. This point is the short, S is the short run equilibrium and L is the long run equilibrium. Economy A से move करेगी S की तरफ. So you should be able to actually say कि S पे क्या हो रहा है. You should be able to look at the graph and tell कि S पे क्या हो रहा है. S पे P कितना है? In the short run, S P कितना है? सेम है। तो P बार ही है, सेम है, तो कीमतें नहीं चेंज होंगी। A से जब S पे मूव करेंगे आप तो कीमतें नहीं चेंज होंगी, प्राइसेस रिमेन द सेम। हाउ अबाउट जीडीपी? जीडीपी इतना था, इधर आगे S पे आए तो जीडीपी वुड बी मोर। यस सर। तो जीडीपी बढ़ जाएगा। जब जीडीपी बढ़ता है तो बेरोजगारी को क्या होता है? कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा चीजें बना रहे हैं, ज्यादा चीजें बना रहे हैं तो बेरोजगारी कम हो जाती है। तो जब पॉजिटिव डिमांड शॉक आएगा, जब पेपैल आ जाएगा तो उससे होगा कि शॉर्ट रन में कीमतें तो सेम रहेंगी, आउटपुट बढ़ जाएगी बिकॉज लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे होंगे। जब ज्यादा आउटपुट बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। लॉन्ग रन में क्या होगा? इकोनॉमी ए से एस पे तो आ गई, अब एस से स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एल। एल पे क्या हो रहा है? प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। इन द लॉन्ग रन प्राइसेस विल गो अप टू P2। आउटपुट को क्या होगा? जो बड़ी थी अब क्या किधर जाएंगी? वो सेम होंगी। वो वापस चली जाएंगी नेचुरल रेट पे। अनएम्प्लॉयमेंट जो कम हुई थी वो भी अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में वापस चला जाएगा। So this is how you interpret कि यार अगर पेपैल आता है पाकिस्तान के अंदर, you should be able to say कि यार पेपैल की वजह से होगा ये कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगी। पॉजिटिव शॉक ये भी हो सकता था कि सेंट्रल बैंक कहता है कि मैं मनी सप्लाई बढ़ा रहा हूँ, बताए बगैर वो कहते हैं मनी सप्लाई, एक दिन पता लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ा दी गई है। ये भी हो सकता था पॉजिटिव शॉक के मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक कहता कि हम पॉलिसी रेट को कम कर रहे हैं, पॉलिसी रेट कम करते तो मनी सप्लाई बढ़ जाती, और यही इफेक्ट आता है, एग्रीगेट डिमांड आगे चली जाती, फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को देखते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करना भी से भी यही इफेक्ट आता है पॉजिटिव सप्लाई शॉक का। रिजर्व रिक्वायरमेंट कम होती तो मनी सप्लाई बढ़ जाती, ज्यादा पैसे अगले बंदे को लेंड आउट हो रहे होते तो एडी आगे चली जाती। सेंट्रल बैंक अगर बाय बैक करता बॉन्ड्स अपने, तो लोगों को पैसा देता, पीस ऑफ पेपर वापस ले लेता उनसे, तो फिर मनी सप्लाई बढ़ जाती। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर फैक्टर्स विद व्हिच aggregate demand will move forward and there will be a positive demand shock. Negative demand shock स्टॉक मार्केट की क्रैश में हमने अभी देख ली।
इसके अलावा अभी हमने नेगेटिव सप्लाई शॉक तो देखी है, लेट्स सी अ पॉजिटिव सप्लाई शॉक. So with all kind of scenarios, first you make the graph, long run aggregate supply. ये पहले बना लिया आपने. अब इसके बाद अगली बात करते हैं. आप कहते हैं ए के ऊपर प्राइस लेवल्स पी बार है, आउटपुट वाई हैट है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है. तो जब नवाज शरीफ हुकूमत में आया ना, तो हुआ ये कि आलमी मंडी के अंदर तेल सस्ता हो गया. जब आलमी मंडी के अंदर ऑयल सस्ता हो गया, ऑयल प्राइस वेंट डाउन, तो जब हम तेल खरीद रहे थे ना बिजली बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए और एवरीथिंग, और गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए, वो सस्ता हो गया. उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एवरीथिंग इन द इकोनॉमी वेंट डाउन एंड द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व experienced a positive supply shock. नोटिस के जब ये शॉर्ट रन नीचे आता है तो दिस इज अ पॉजिटिव सप्लाई शॉक. तो नून लीग की हुकूमत में हुआ ये कि जब पॉजिटिव सप्लाई शॉक आया तो इकोनॉमी मूव फ्रॉम ए टू पॉइंट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड कट हो रही है. इकोनॉमी मूव फ्रॉम ए टू एस. अब सवाल ये है कि एस पे क्या हो रहा है, शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, कीमतों को क्या हो रहा है, आउटपुट को क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हो रहा है. कीमतें पी प्राइस हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, आउटपुट को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रही है. तो जीडीपी बढ़ रहा है, और जब जीडीपी बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाती है. लॉन्ग रन में अगर आप कुछ ना करें तो क्या होगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का है, your demand curve and then you have a long run supply curve. तो इकोनॉमी एस से वापस ए की तरफ जाएगी. ए एक्चुअली द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. तो ए में कीमतें वापस जाके पी बार पे आ जाएंगी, आउटपुट वाई बार पे हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पे आ जाएगी वापस. तो नून लीग के हुकूमत में हुआ ये कि जब वो पावर में आया तो तेल सस्ता हो गया. तेल सस्ता हुआ तो एवरीथिंग इन द इकोनॉमी बिकेम चीपर, जीडीपी बढ़ना शुरू हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो गई. ऊपर से चाइना ने भी इन्हें कहा कि यार हम आपके साथ सी पैक करेंगे, और थोड़ा सा सी पैक की भी एक्टिविटी तेज होगी. एंड थिंग्स स्टार्टेड टू लुक गुड ड्यूरिंग द लास्ट नून लीग की गवर्नमेंट. So this is an example of a positive supply shock. Anything that causes the cost of production to go down is a positive supply shock. तो अब हमने चार तरह के ग्राफ देखे ओवरऑल टोटल. If you want to look at it in some way, you have 4 basic kinds of shocks that can happen. AD, SRAS, LRAS. You can have the aggregate demand go down, which is a negative demand shock. You can have it go up, which is a positive supply shock, demand shock. You can have the short-run aggregate supply curve go up, which is a negative supply shock, or you can have the short-run aggregate supply curve go down, which is a positive supply shock. इन 4 scenarios के अलावा कोई और scenario नहीं है that you need to be worried about. You should be able to make this, show what happens, identify equilibrium, short run, long run, both show what happens when you move from A to the short run equilibrium and what happens when you move from the short run equilibrium to the long run equilibrium. And that is everything that you need to be able to do for the ASAD model from the exams point of view. कोई सवाल जवाब है पूछ लें before we get to the quiz/assignment thing that I want you to do. अच्छा जी, अगर कोई सवाल जवाब नहीं है तो I have uploaded your quiz/assignment on the LMS portal. LMS पोर्टल के ऊपर जाके अपनी असाइनमेंट/क्विज डाउनलोड कर लें
इसके अंदर एक गूगल का लिंक है। तो गूगल का लिंक खोल के आपने सवाल सॉल्व करने, एक्सेप्ट के इसमें 2-3 ऐसे सवाल हैं जो आपने पेज पे सॉल्व करके फिर अपलोड करने हैं, एंड यू हैव द नेक्स्ट 1 hour टू सॉल्व दिस। 1 घंटे के अंदर अंदर ये सॉल्व करने हैं जी आपने, और फिर इसको दैट वुड बी द एंड ऑफ द 3 hours फॉर द डे। सही, ये ओपन नहीं हो रहा। बेटे मैं खोल दूंगा तो ओपन होना शुरू हो जाएगा। चलिए, I'm stopping my right. So this is probably it for the day. We have had 24 or 25 people online who were present. मैंने आप लोगों की attendances download कर ली हैं, and you are required to spend the next 1 hour trying to solve the link. Meanwhile, I'll see why the link is not working. It should be working. कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, ये शुरू होगा 2:30 पे, and it'll end at 3 o'clock. Take this as not 3 o'clock, 3:30, and take it as a quiz, and quiz yourself on how well you are understanding what's going on in class. Hopefully now it should be accepting responses. जो solutions हैं वो आपने तस्वीर खींच के you have to upload on the LMS. I hope that is clear. I'll send a voice note in the group as well, just in case people are sleeping, so that they know. सर ये पिक्चर जो लेंगे ये फिर असाइनमेंट में पोस्ट करनी होगी? ये assignment में post करनी होगी। ओके सर। Chalen ji, that is it then. Thank you very much for your time. See you next time. सर अटेंडेंस नहीं लेंगे? मैंने ले ली यार अटेंडेंस। वो I've downloaded. Sorry? सर मैंने आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है।